तो और मैं शाहरुख खान का बेटा हूँ, तो भाई मुझे पहले फ़िल्में मिलेंगी। अगर आप जो है शाहरुख खान के बेटे नहीं हैं, तो शायद आपको फ़िल्म में स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले आपको टीवी सीरियल में आना पड़ेगा और फिर शायद आप जो है मूवीज़ में आ पाएँगे, जो भी ठीक है, अपॉर्च्युनिटी तो मिल ही रही है। I am not planning to do an MBA in finance. ओके, So my query is that will not getting into IIM Ahmedabad or Bangalore and I can make my salary growth up to their level. ओके। येस, सो आकाश फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। व्हाई कांग्रेचुलेशंस? देखो यार, हम जितने भी छोटे शहरों से आते हैं ना यार, हम सबको पब्लिक फोरम में इंग्लिश में बोलने में बहुत दिक्कत है। एटलीस्ट हमको साइकोलॉजिकली लगता है कि यार वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन स्मॉलर सिटीज, राइट, टॉकिंग इन हिंदी ऑल द टाइम। So how we will talk in English in the public forum? So you came here, you asked your question and you presented yourself in English. That is very important. It is not that यार कि हिंदी खराब भाषा है. It is, but यार you need to understand this, that the language of finance, Akash, is English, and that is why this should be there in your head, because as we move along यार, आपको जब करियर बनाना है तो वो बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, which means that the domain in which you want to build your career in, you should be very easy, or you should have that seamlessness with that domain, and English is that language here which will connect you to that world. Okay, so very well done on that part, and continue to improve on that यार। हमेशा आपको एक हिचक रहेगी अंग्रेजी में बात करने की, मुझे भी थी when I started my career, and it is absolutely fine यार। धीरे धीरे you will continue to improve. Now your specific query, so यार understand this, that यार will you when you start your career, a lot of people believe that if you are not part of IIT or IIM fraternity, then आप पीछे पिछड़ जाओगे। It is absolutely not true. The only thing यार which differentiates people in IIT IIM and people who are outside these colleges is that यार people in IIT IIM are always looking for growing their skill sets. नहीं तो बच्चे यार जो उन्होंने IIT कर लिया था उनको IIM करने की जरूरत ही नहीं थी। वो सोचते थे कि ठीक है यार IIT हो गया, अब और क्या पढ़ना, इसी में ग्रो करते हैं। उन्होंने बोला नहीं यार, यहाँ नहीं रुकना, अब IIM कर लेते हैं। IIM में जाते हैं वही सेम बच्चे, और मैं तो अपनी कथा आपको सुना रहा हूँ। IIM में हम बच्चे जाते हैं तो फिर हम यार यहाँ बोलते हैं कि नहीं यार, अभी तो CFA भी करना बाकी है, अगर फाइनेंस में करियर बनाना तो CFA भी कर लेना चाहिए, तो फिर CFA भी कर लेते हैं, राइट। फिर CFA करने के बाद भी जो है हम कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। अगर कोई जॉब होती है जिसमें कि मज़ा नहीं आ रहा होता तो इमीडिएटली चेंज करते हैं, ताकि आपका करियर प्रोग्रेशन हमेशा बढ़ता रहे, कहीं भी स्थायी नहीं होते। बिकॉज द डे यू से दैट ओके माई नॉलेज बेस इज कंप्लीट टुडे, दैट इज द डेथ ऑफ योर ग्रोथ। एंड दैट टू मी आकाश, आई थिंक you should remember that yeah, you should not fall prey to that mindset, and that itself, this mindset of continuously learning and continuously upskilling yourself itself will put you at par with folks who are passing out of IIT IIM. People who are passing out of IIT IIM, उनमें कुछ अलग नहीं है, उनमें खाली एक एटीट्यूड का डिफरेंस है। वो एटीट्यूड ये है कि यार वो कभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उनका नॉलेज संपूर्ण है। इवन एट दिस एज, आफ्टर डूइंग सो मेनी डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस, आई स्टिल seek knowledge wherever it is in abundance, so that यार I can continue to learn and grow. Same for you यार, and for others also who are thinking कि सर हम IIT IIM में नहीं है तो क्या सर हम सेम लेवल पे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, etc. Same word of advice यार, if you are continuing to upskill yourself, you will eventually reach that place where people from IIT IIM are. Now let me give you some very real practical examples. The practical examples are yaar, that you would have seen in politics, in so many other places, where people yaar from very normal background have risen to a stature where people with very big dynasty behind them and with very big backing behind them could not reach. It is primarily because yaar, that if you are always striving for upskilling yourself, if you are always striving for the goal, eventually you will get there. नाउ टू योर फाइनर पॉइंट कि सर क्या मैं उनसे आगे बढ़ पाऊंगा? देखो यार, लेट अस प्लान दिस, दैट यार फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ. द ट्रूथ इज दैट पीपल हु आर इन IITs एंड IIMs आर 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. अगर आज 100 बच्चा बाजार में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उसमें से एक ही बच्चा ऐसा होगा जो IIT और IIM दोनों होगा. व्हाई? बिकॉज यार देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स इन IIT IIM. बट इसका क्या मतलब है कि यार कंपनी में तो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कंपनीज हैव थाउजेंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स. आज आप किसी भी प्रीमियर जॉब वेबसाइट पे जाइए और आप टाइप कीजिए CFA, या आप टाइप कीजिए CFA पर टाइप कीजिए सैलरी. सो अभी जो है यू टाइप देयर इक्विटी एनालिस्ट, अभी आपको भर की इतनी सारी हजारों की जॉब प्रोफाइल्स मिलेंगी. क्या वो सारी जॉब प्रोफाइल्स IIT IIM वाले भर देंगे? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उतने तो बच्चे ही नहीं है मार्केट में जो IIT IIM के बैकग्राउंड से हैं, राइट. तो हेंस यार you will have to understand that people outside IIT IIM also will get into these premier job profiles. और ये सत्य है, ये मैंने तो बहुत अपने करियर में बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि जिन
जगहों पे मैं काम करता था वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे विदाउट IIT IIM के भी थे। तो मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि आप भी ढूँढिए और सर्च कीजिए तो आपको इतनी सारी जॉब्स मिलेंगी। अब वो जॉब्स में सारे IIT IIM तो आ ही नहीं सकते क्योंकि उतने बच्चे ही नहीं IIT IIM वाले। तो बाय डिज़ाइन दीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ विल ओपन अप फॉर पीपल आउटसाइड IIT IIM एज़ वेल। नंबर 2, यू विल हैव टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि हाँ यार, जिसने IIT IIM कर रखी है, जिसने IIM अहमदाबाद से पास आउट कर रखा है, डेफिनेटली यार उसने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से अपनी MBA कर रखी है, तो डेफिनेटली यार उसको प्रेफरेंस तो मिलेगी। आप ये बोलेगे नहीं सर मैं तो IIM से नहीं हूँ बट मुझे भी सेम प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होता है यार। सिंपल है। अगर मैं खान हूँ तो और मैं शाहरुख खान का बेटा हूँ तो भाई मुझे पहले फिल्में मिलेंगी। अगर आप जो है शाहरुख खान के बेटे नहीं हैं तो शायद आपको फिल्म में स्ट्रगल करना पड़ेगा, पहले आपको टीवी सीरियल में आना पड़ेगा और फिर शायद आप जो है मूवीज में आ पाएंगे, जो भी ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही। आज जो है हर जो शाहरुख खान है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, हमारे अगेंस्ट जो है पंकज त्रिपाठी है, तो क्या हमारे अगेंस्ट मनोज वाजपेयी है, अनुपम खेर है, तो थोड़ी इनकी कोई पीछे लीनियज थी कि इनके बाप दादा जो थे एक्टर एक्ट्रेसेस थे तो इनको भी चांस मिल गया। बट हाँ, ये बोलना कि यार शाहरुख खान का बेटा जो है उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, क्यों मिल रही है भाई, वो उसके भाग्य का वो खा रहा है। बट इसका मतलब नहीं है कि जो बाहर हैं इस इंडस्ट्री के, जिनके बाप दादा इस इंडस्ट्री में नहीं है, वो अच्छा नहीं कर सकते। सेम इज ट्रू फॉर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी had absolutely no background in this field. He is the prime minister. People who had background are failing to become prime ministers. तो hence यार ये हर जगह ट्रू है। बट हाँ, ये बोलना कि आपके लिए राह आसान होगी एज कम्पेयर टू IIM, तो वो नहीं होगी क्योंकि उसके पास वो बैकग्राउंड है और उसके लिए यार या तो उसने अच्छे कर्म किए या उसने मेहनत की है, राइट। तो हेंस यार वो आपको लेकर चलना पड़ेगा। बट क्या आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं? ऐसा एब्सोल्युटली नहीं। अब बात है कि यार वहां पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो वहां पहुंचने के लिए यार 2 स्टेप का प्रोसेस जो आपको समझना पड़ेगा। पहला कि यार बिना आपके बैकग्राउंड के या बिना आपके ब्रांड के तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिना ब्रांड के वो अपॉर्चुनिटी देने में समय लगता है और रिस्क है। सो इफ आई टेक यू इन माई से कंपनी and you don't have any background and you say sir but I am very passionate about finance, so how do I know that you are passionate about finance, Akash? And hence in that case I would, because आप ही नहीं खाली बोल रहे हैं passionate about finance, सब लोग जितने लोग हैं हजारों की मात्रा में वो सब बोल रहे हैं passionate है। और ब्रांड जहां मैं देखूंगा मैं उनका पैशन को पे यकीन करूंगा कि अच्छा यार इस पे ब्रांड है। इसको थोड़ा मूवी के एग्जाम्पल से देखते हैं क्योंकि मूवी के एग्जाम्पल से शुरू किया था। तो भाई मनोज वाजपेयी, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी में क्या कॉमन है? तो इनमें कॉमन यही है यार कि ये सब जो एक आपका एक्टिंग स्कूल है, राइट, उन सेम एक्टिंग स्कूल में इन्होंने अपना जो है काफ़ी लंबा समय उस एक्टिंग स्कूल में बिताया। तो सबको ये है कि हाँ यार इस एक्टिंग स्कूल का ब्रांड है इनके पास। तो भले जो है इनके पास खान पावर नहीं है, इनके बाप दादा शाहरुख खान नहीं है, बट चूंकि इनके पास एक एक्टिंग स्कूल का ब्रांड है तो चलो यार इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो कोई सीरियल से किसी ने शुरू किया, किसी ने एक छोटी फिल्म से शुरू किया, किसी ने टीवी सीरीज से शुरू किया और ऐसे करके ये बड़े बने। सेम आपके लिए भी होगा कि पहले तो आपको एक ब्रांड लाना पड़ेगा, नहीं तो यार करोड़ों लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमको फाइनेंस का पैशन है, बट वो कैसे पता लगेगा पैशन है कि नहीं? तो एक ब्रांड चाहिए। वहां CFA वही एक्टिंग स्कूल है जो आपको वो ब्रांड देता है, नंबर 1। नंबर 2 कि यार हो सकता है शुरुआत में टीवी सीरियल पे काम करना पड़े, डायरेक्ट आपको फिल्में ना मिले, विच व्हाट डज इट मीन फॉर योर पर्सपेक्टिव, कि यार हो सकता है आपको पहले छोटी कंपनी में काम करना पड़े। जैसे मेरे पास चूंकि IIM का ब्रांड था बट उसके बावजूद भी मेरा फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं होता, क्योंकि यार CFA तो चाहिए। CFA तो ऐसा सोचिए हाइजीन है, मतलब आपके पास जो है अगर CFA नहीं है तो फाइनेंस के तो दरवाजे ही बंद हैं। अच्छी प्रोफाइल्स की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास IIM था बट मुझे तुरंत अनुभव हो गया था कि आई नीड टू गेट अ CFA, सो आई गॉट CFA एंड हेंस I got into JP Morgan Chase in my internship, final placements in Goldman Sachs, then I went into consulting, BCG and bunch of other good firms. ये क्यों हो पाया? मेरे लिए शायद थोड़ी राह आसान थी क्योंकि मेरे पास IIM का बैकग्राउंड था। आपको हो सकता है कि JP Morgan Chase डे 1 पे ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है ना। ICICI बैंक में भी वही क्रेडिट एनालिसिस का डिवीजन है, वही इक्विटी रिसर्च का डिवीजन है, वही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डिवीजन है, वही क्रेडिट रेटिंग का डिवीजन है, राइट, वही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का डिवीजन है, वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीजन है। तो आप हो सकता है आप ICICI बैंक से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। इट इज लाइक यू विल स्टार्ट विद अ टीवी सीरीज एंड देन यू विल गेट अ गुड मूवी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? Friends, if you have reached this far, I just want to thank you from the bottom of my heart. I hope you liked this session, right? And I'm sure it would have given you a lot of insights of how CFA can help you flourish in your career. Please share this and subscribe to the channel so that you don't miss out on any updates. Thank you again so much for attending this entire session. Bye bye. Thank you.